Good afternoon, students. This is the video for the interpretation of bias. In the last video, we have started the neuron signal functions and we have covered the first type of signal function, which is binary threshold function. In this video, we are going to cover the interpretation of bias. As you see in the last video, the binary threshold function is given as, see here, just a minute. Okay, I am creating a new whiteboard, so I am able to write freshly for you, for all of you. Okay, we see that binary threshold function is given as, I am using black pen for you. Okay, it is red, that is fine. Given as xj is equal to summation from I is equal to 0 to n wij si. We also see that this equation is equivalent to the summation from what? I is equal to 1 to n. Next what? wij si plus it is w0j, and if you remember, we put s0 is equal to 1. I am already explained you this point. Okay, now we are going to convert this equation into the new form which is used for the interpretation of the bias, and this is from qj is equal to qj plus w0j. Okay, so equation 1 and equation 2 we have already discussed. What we did nothing. We replaced that summation of wij si from I is equal to 0 to n in the form of qj. Now, what is qj? qj is the activation. ठीक है, ये qj क्या है? qj is the activation that aggregates from the external sources, and w0j is the bias internal to the neuron. In the last lecture video, we already discussed this thing. Now, qj as the net external input to the neuron, or simply the activation of the neuron when the bias is set to 0. That is, bias weight gives the neuron an extra degree of freedom which extends the learning capability of the neuron. मतलब bias क्या कर रहा है? Bias neuron को एक freedom दे रहा है कि वो खुद का learning capability खुद बढ़ाए. ठीक है? Note that the addition of the, अभी यहाँ पे देखो, in the binary threshold function, okay, we see this diagram in which we put the bias here and we did like this. ये डिसकंटिन्यू हुआ फंक्शन एंड यहाँ पे वो फिर से कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ पे आपका 0 था और यहाँ पे क्या था आपका 1. ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हमने, ओके, सेकंड डायग्राम में हमने क्या दिया था? बायस इज इक्वल टू 3 सेट किया था. ठीक है, और हमने क्या किया था यहाँ पे? नाउ हियर इज द 0 when bias is equal to 0. और सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे लिखा था 0 -5 -3. ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या था आपका? -3 और यहाँ पे क्या था? 0, और आपने बायस सेट किया था 3, तो वो इस तरीके से कुछ हुआ, सेट हुआ था. ओके ओके, लिसन, सी हियर, यहाँ पे 0 है. नाउ यू आर सेटिंग द बायस एज 3,
तो वो 3 पे आके चेंज हुआ था टुवर्ड्स द 1। तो यहाँ पे आपका था 0 और ये आपका था 1। अगर आपको याद है तो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस दीज टू डायग्राम्स। विच टू डायग्राम्स? ओके, दीज टू डायग्राम्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो यहाँ पे एक इसमें आपको हमने क्या सेट किया था? वी सेट बायस, ओके, वी सेट बायस एज इक्वल टू 0 और एक इसमें हमने सेट किया था बायस एज इक्वल टू द +3। तो अभी यहाँ पे मूवमेंट हुआ, शिफ्टिंग हुआ था। अगर आप देखोगे तो शिफ्टिंग किस तरीके से हुआ था? शिफ्टिंग इस तरीके से हुआ था, सी हियर, यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो वही है। नोट दैट द एडिशन ऑफ द पॉजिटिव बायस टू द एक्सटर्नल इनपुट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, अभी हमने बायस क्या सेट किया है? जो हमने बायस सेट किया हुआ है दैट इज द पॉजिटिव बायस। ठीक है, वो कैसे सेट किया है? हमने पॉजिटिव सेट किया है टू द एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, टू द पॉजिटिव बायस सेट किया है इसमें टू द एक्सटर्नल इनपुट ऑफ द न्यूरॉन। एंड उससे क्या हो रहा है वो सुनो, इज इक्विवेलेंट टू शिफ्टिंग द थ्रेशोल्ड लॉजिक सिग्नल फंक्शन टू द लेफ्ट along the QJ axis by the value of the bias। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका बायस क्या है? अगर आपका बायस पॉजिटिव है तो आपका थ्रेशोल्ड सिग्नल फंक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? आपका थ्रेशोल्ड सिग्नल फंक्शन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ऑब्वियसली अभी मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलूंगी कि इफ similarly if you are adding the negative bias to the external input of the neuron, तो आपका थ्रेशोल्ड सिग्नल फंक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगा? अगर आपका बायस क्या है? निगेटिव है, तो आपका थ्रेशोल्ड सिग्नल फंक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगा? इट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, इट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। ओके, तो ये दो पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद सी दिस डायग्राम विच सिंप्लीफाइज योर डाउट। यहाँ पे देखो इन दिस फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, सी दिस वन। इन दिस फर्स्ट डायग्राम हमने क्या किया हुआ है? यू सेट बायस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यू सेट बायस इज इक्वल टू 0। तो बायस इज इक्वल टू 0 है, तो बायस कहाँ पे सेट हुआ है? टुवर्ड्स द 0 सेट हुआ है। ठीक है, मेरे माउस के तरफ आप देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा बायस कहाँ पे सेट हुआ है? टुवर्ड्स द 0 सेट हुआ है। यहाँ पे देखो, अगर आपने बायस सेकंड डायग्राम में हम अपने बायस क्या सेट किया हुआ है? बायस इज इक्वल टू 3, तो वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो यही हमने अभी देखा। हमने क्या देखा अभी? अगर हाँ, टुवर्ड्स द राइट। यही हमने अभी देखा कि अगर आपका बायस पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर आपका बायस नेगेटिव है तो वो कहाँ पे शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से इस ये पूरे वीडियो से व्हाट यू हैव टू गेट, यू हैव टू get the definition of what is the use of bias। तो now I am reading this what is the use of bias। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो ये bias आपको क्या करके दे रहा है? ठीक है, sorry, this definition is not from this book, so you have to listen it very carefully। Bias is like the intercept added in a linear equation। It is used to adjust the output along with the weighted sum of the inputs to the neuron. Thus, bias is a constant which helps the model in a way that it can fit best for the given data। ठीक है, मतलब बायस क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट जो आप किसे दे रहे हो? न्यूरॉन को दे रहे हो, ताकि न्यूरॉन क्या करे? खुद को सेट कर सके एज पर द फिटनेस टुवर्ड्स द बेस्ट आउटपुट।
Okay, मैं फिर से I am going to read the definition of the bias. Bias is like the intercept added in a linear equation. It is used to adjust the output along with the weighted sum of the inputs. What is the meaning of along with the weighted sum? ये जो हम summation use कर रहे हैं, this is nothing but the weighted sum of the inputs to the neuron. Thus, bias is a constant which helps the model in a way that it can fit best for the given data. Okay, so this is all about the interpretation of the bias. In the next, we will continue with the next type of signal function, which is the linear threshold signal function. Okay, which one? Linear threshold signal function. Okay, thank you.